I'll be happy to share whenever you're ready. अस्सलाम वालेकुम आप लोग खैरियत से हैं? आज हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं साद बिन सईद, सीनियर डायरेक्टर ऑफ क्लासिफाइड ग्लोबल टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? I'm very well, thank you, and walaikum salam, Rimsha. Sir, welcome to our show. Thank you for having me. Sir, kindly मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि who are you, when you started your journey, each and everything. Sure, and वो बताते हुए, let me share you a few things, Rimsha, जो मैंने prepare की हुई हैं. Hopefully they'll give a better sense of who I am and my journey. So, anyways, my name is Saad bin Saeed. I'm a senior director at Pfizer. It's a pharmaceutical company, and I lead their technology and digital group for vaccines. So, a little bit about myself, Rimsha, and all the audience. That's my family. I have two sons, Mikhail and Noah, and my wife. We also have an extended family. दो बिल्लियां हैं हमारी. We have two cats, Coco and Chanel, which we sort of adopted 2-3 years ago. I have that box of KFC, not only because we like eating KFC, but that was my first job in United States about 20 some years ago. So I worked at KFC. वहीं पे शुरू किया था मैंने. I enjoy a lot of music. I enjoy listening to strings. I enjoy listening to other bands as well. और प्लस मेरी वाइफ को एक हेल्थ कंडीशन है, Crohn's and colitis. So we are very active in patient support, outreach, and volunteer work related to that. In the center, जो चीज़ है, something I'm very proud of, क्योंकि मैं फाइजर वैक्सीन्स में काम करता हूँ, उनकी टेक्नोलॉजी को लीड करता हूँ, तो लास्ट ईयर जो कोविड वैक्सीन बना था फाइजर का, उसमें मैं खुद और मेरी टीम we contributed in a small way and we made it possible कि through technology वो दुनिया भर में वो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट हो. So something I'm very proud of कि मेरी और मेरी टीम को ये अवार्ड मिला था 2020 के एंड में for our contribution in COVID vaccines. So overall, Rimsha, that's who I am, and I'll be happy to move to the next question जो आपका था, which is related to a little bit about my journey. So, yes, that was really nice to hear about your family and your pets, Sheila. And yes, now can you share your journey with us? आपका journey जो थ्रू e-commerce से पहले और अभी कैसे जा रहा है? जी. So anyways, मैं कराची से हूँ. I was born in Emigena Road, Civil अस्पताल area, and then early part of my life मेरी ज़िंदगी वहीं गुजरी है. मैं, मेरे छोटे भाई, मेरे parents की. फिर हम मूव हो गए थे क्लिफ्टन में in 1985 and we've spent pretty much हमारा teenagers वगैरह वहीं पर गुजरा है. फिर in early 90s I came in United States, न्यू जर्सी में आया था. यहाँ मेरी खाला रहती थी, तो यही हुआ कि चलो खाला करीब है, यहीं चले जाओ. यहाँ रटगर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आया था. मेरी एजुकेशन जो है वो अंडरग्रेड या बैचलर्स कह लें, वो अकाउंटिंग में है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग में. उसके बाद मैंने मास्टर्स किया अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी, एंड देन उसके बाद ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स वगैरह करे मैंने MIT इन स्ट्रैटेजी एंड इनोवेशन. So that's a little bit about my education. My work experience, मैंने जॉब शुरू करी थी ग्रेजुएट होने के बाद AT&T में. It's a telecommunication firm. Right after school, right out of college, यानी मैं वहाँ पर काम किया था कोई तकरीबन 2-2.5 साल. उसके बाद Oracle Consulting, which is a big software house, आप लोगों को पता ही होगा, उनके साथ मैं कंसल्टिंग करता था. I used to work for them. तकरीबन 3-4 साल वहाँ काम किया और उसके बाद से I started working at Pfizer Pharmaceutical. R&D में काम किया, हमेशा टेक्नोलॉजी बट सपोर्टिंग डिफरेंट एरियाज, R&D, ऑन्कोलॉजी, वैक्सीन्स, अब कोई 4-5 साल से. ठीक है. उसके अलावा काम के साथ साथ आई डू अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स. मैं और मेरे दोस्त वी पूल इन मनी, कोई 15 से 20 दोस्त, एंड देन वी बाय होम्स, उनको रीहैब करते हैं दूसरे लोग एंड वी सेल देम. सो आई डू अ लॉट ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स. आई ऑल्सो डैबल इनटू स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, थोड़ा बहुत शौक भी है, थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, तो वो भी करता हूँ. एंड देन आई हैव डन अदर एंटरप्रेन्योरियल स्टफ एंड आई विल गेट टू ई-कॉमर्स कि मैंने थोड़ा बहुत PL में भी इन्वेस्ट किया है. अपना PL नहीं किया है, किसी दूसरे के PL में इन्वेस्ट किया है. और तकरीबन 8-9 महीने से आई एम ऑल्सो डूइंग होलसेल.
more importantly or most importantly, ये तो मेरा education background वगैरह हो गया, but what I'm really passionate about is my family and friends. I'm fortunate कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, acquaintances भी हैं. मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बातें करना, उनके साथ टाइम गुजारना, and I'm very, passionate about my family as well. I enjoy cooking, traveling. I do really good barbecue. At least my family says it कि मैं barbecue अच्छा करता हूँ. And then I also do a lot of mentorship of students, of people at work. और मुझे शौक है high performing talented teams develop करना और उनको grow करना, क्योंकि as they grow then I grow. So to me, I think I've had a fairly good journey, but my main happiness and success is around my family, friends, developing people and mentoring. So that's a little bit about my personal life, my own self, and I'll take a pause here. That's great, that's great. मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि पूरे जो इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट किया था आपने पीएम में किसी के साथ इन्वेस्ट किया है ना, हाउ इज गोइंग? So actually it's going really well, and let me tell you a little bit about the Amazon journey. So जिस तरह मैंने कहा कि मैं अपना मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता हूँ, रियल एस्टेट में करता हूँ, प्रोजेक्ट्स में करता हूँ, तो तकरीबन 2019 में कुछ 4 लोग, 3 males 1 female came to our team, came to our group I should say, और उन्होंने कहा जी हमारा एक प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है, अच्छा खासा बिक रहा है, एंड वी नीड तकरीबन $2.5-3 लाख चाहिए हमें और इन्वेंट्री बनाने के लिए. उस वक्त तक मुझे अमेजोन के बारे में तो पता था, लेकिन इतना डिटेल नहीं पता था कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, होलसेल क्या होता है. सो हम दोस्तों ने पैसे वगैरह पूल इन किए, कोई $2.5-3 लाख, और उन टीम को दे दिए. बिल्कुल पैसिव इन्वेस्टमेंट. जनवरी में उन्हें पैसे दिए, वो हमें 2-3 साल से दिसंबर में अबाउट 15% रिटर्न दे देते हैं. सो इट्स अ वेरी हैंडसम इन्वेस्टमेंट, गुड ROI, कुछ हमें करना नहीं पड़ता. अब जो मुझे समझ आ गया है, सो आई अंडरस्टैंड वो क्या कर रहे हैं. उनको एक्चुअली पैसे चाहिए थे अपनी इन्वेंट्री बनाने के लिए. दे डील इन शावर हेड्स, उनकी रैंकिंग वैंकिंग पहले पेज पर है, कोई 3-4-5 हज़ार से ज़्यादा उनके पास रिव्यूज़ हैं, काफ़ी वेरिएशन है. सो माशाल्लाह दे आर डूइंग एक्सेलेंट, और मेरे ख्याल से $4-5 मिलियन की सेल है उनकी मंथ की. यहाँ डेलस में होते हैं, एंड दे आर मुस्लिम्स, पाकिस्तानीज, दे आर डूइंग रियली वेल. सो ये मेरा PL का जर्नी था. बट इन एनी इवेंट, इन 2020 मैं और मेरे दोस्त ऐसी डिनर पे बात कर रहे थे, एंड फ्रेंड ऑफ माइंड सेड कि यार आजकल पाकिस्तान में बहुत अमेजोन की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं. ठीक है, मैंने भी आके थोड़ा यूट्यूब पे गूगल करा, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के देखे, ESP का देखा, दूसरों का देखा, और फेयरली क्विकली मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार मेरे लिए, मेरा जो रिस्क टॉलरेंस है उसके लिए, और जितनी मैं एफर्ट लगा सकता हूँ, होलसेल इज़ द राइट थिंग. सो 2020 नवंबर में मैंने पहला अपना होलसेल अकाउंट खोला, खुद ही इन्वेस्ट किया, खुद ही ID बनाई एंड ऑल दैट स्टफ, खुद ही LLC बनाई. वहाँ से मेरा आप कह लें अमेजोन का होलसेल जर्नी शुरू हुआ. वहाँ पर उसी टाइम मुझे, एंड आई स्पीक टू इट, मैं ब्रीफली मेंशन करूँगा, काफ़ी VAs और लोगों से बात करने के बाद मुझे एक एक्सेप्शनल लेडी से मेरी मुलाकात हुई, वेरी टैलेंटेड, very honest, and now she is the main team member or the most senior team member of my team. और उनके साथ मैंने शुरू किया, और पहले मंथ में कोई जनवरी में सेल हुई थी मेरे ख्याल से $1,000 की, फिर दूसरे मंथ में कोई 3,000 की, फिर तीसरे मंथ में 30,000 की, फिर 50,000 एंड ऑल दैट. और इस वक्त इवन दो ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, तो इसमें लिखा हुआ है कि 2021 में ईयर टू डेट सेल हमारी इस वक्त $221,000 की हो चुकी है, और एवरेज हम करते हैं अबाउट $40,000-45,000 पर मंथ एट आई थिंक 10-11% मार्जिन. ठीक है. उसके साथ साथ फ्रेंड्स, रिमशा, मेरी फैमिली के लोग, मेरे कज़न, मेरे दोस्त, एक दो को पता चला, उन्होंने भी अपनी सेलर सेंट्रल खोला, LLC खोला, अपना पूरा अकाउंट और ID बनाया, बट मैंने उसमें थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए, बेसिकली 50%. सो इस वक्त मेरे पास 5 अकाउंट हैं, या आप 6 कह लें, जिसमें एक मेरा अपना पूरा है, और बाकी 4 में मैं 50% का इन्वेस्टर हूँ, एंड आई मैनेज इट. मैं ही उनको चलाता हूँ. ऑब्वियसली टीम चलाती है, बट आई वर्क विद द टीम, एंड प्रीटी मच आई ओन और को ओन दोज. और मेरा गोल यही है कि मैं कुछ अकाउंट्स को इन 2022 काफ़ी
सेल्स के लिहाज से इनको $1 million अकाउंट्स बना दूं, नॉट सिंगल डिजिट मिलियन बट मल्टीपल $1 million अकाउंट बना दूं। अल्लाह का शुक्र है कि इन्वेस्टमेंट की मुझे इतनी परेशानी नहीं है। माय फ्रेंड्स, माय ग्रुप, जो हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट्स अमेजोन में हमारे लिए छोटी हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हमारी काफ़ी बड़ी होती हैं। सो आई हैव दैट सप्लाई ऑफ मनी, और अच्छी टीम पाकिस्तान में या दूसरी जगह अगर बनने लगे, जो बन रही है मेरी ऑलरेडी, उस वजह से दोज आर माय एस्पिरेशन। सो अ फ्यू थिंग्स जो मैं शेयर करूंगा इस जर्नी में। जैसे मैंने कहा कि आई स्टार्टेड विद 1 VA, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आफ्टर टॉकिंग टू 10-12 VAs, individuals, somehow I clicked with this individual, और उनका फोकस पैसे पे नहीं था, and I'll speak to that on the last slide as well. करंटली इस वक्त 6 टीम मेंबर हैं मेरे। एक टीम 3 अकाउंट देख रही है, एक दूसरी टीम 1 अकाउंट देख रही है, और एक अकाउंट के लिए आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल। आई बिलीव पाकिस्तान में माशाल्लाह इतना अच्छा टैलेंट है, लोगों को अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। सो आई ऑलवेज स्टार्ट विद प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप to individuals, and then if they do well, महीना 2 महीना, I try to bring them on my own team. So I'm not an agency, मैं खुद ही इन्वेस्टर हूँ, खुद ही क्लाइंट हूँ, और खुद ही अपनी टीम बनाना पसंद करता हूँ कि मेरी तरीके से मेरी टीम काम करे और ग्रो करे। ठीक है, a few points on this कि ये बिजनेस जो है, इट्स अ वेरी वायबल बिजनेस, इट्स अ वेरी स्केलेबल बिजनेस। आई थिंक मैंने उज़ैफा को भी सुना है, मोइस को भी सुना है कि भाई दिस इज अ बिग बॉयज गेम, एंड दे आर राइट। बेसिकली ये काम छोटे बजट के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको बिजनेस की तरह करना चाहें, और कोई कहे यार मैं 3,000 या 5,000 से शुरू कर दूं, सो मेरे एक्सपीरियंस में वो वायबल नहीं है, क्योंकि आप छोटे अमाउंट से इन्वेंट्री खरीदेंगे, इन्वेंट्री पहुंचेगी, अब आप वेट करेंगे कि वो बिके तो फिर पैसे आए तो फिर हम दोबारा बाय करें, तो VA वगैरह की तो फीस जा रही होगी, सो आपके एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रियली ग्रो द बिजनेस। सो देयर इज सम हैप्पी मीडियम बिटवीन 5,000 to 50,000 जिससे ये बिजनेस शुरू हो सकता है। हर इंसान की अपनी नीड्स होती हैं, अपने गोल्स होते हैं। मेरे लिहाज से ये थोड़ा बड़े अमाउंट का बिजनेस है, ये 3 से 5,000 का बिजनेस नहीं है। कर सकते हैं आप, इंडिविजुअल अकाउंट खोल लें, लेकिन फिर आपको VA वगैरह करने की हायर करने की जरूरत नहीं होती, आप खुद ही ये काम करें। अनदर गो क्वेश्चन कि जब आपने मतलब आप VAs डिफरेंट VAs से बात कर रहे होते हैं एंड ऑल, और ऑलरेडी माशाल्लाह यू आर हैविंग अ गुड टीम, तो आपकी एज एन इन्वेस्टर एक क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि मतलब अगला जो VA हो वो किस तरह का हो, और एक VA को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जब वो एक इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं तो उसका जो एक एक्सप्लेनेशन है वो ऐसे शो ना करे कि दैट इज मूविंग अराउंड ओनली मनी, हाउ दे कैन प्रोड्यूस वैल्यू इन देयर बिजनेस एंड ऑल। क्या ये ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि एक इन्वेस्टर को भी अपने माइंड में रखनी चाहिए और एक VA को भी रखनी चाहिए ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, जब भी फर्स्ट सेकंड मीटिंग्स होती होती हैं? जी, आई थिंक मैं VA से शुरू करता हूँ, एंड आई विल स्पीक इन मोर डिटेल टुवर्ड्स द एंड, लेकिन मैं थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ कि एज एन इंडिविजुअल कोई भी जब आप एंगेजमेंट करते हैं किसी से, चाहे अमेजोन के बिजनेस में हो, चाहे कोई और काम में हो, आप कॉन्ट्रैक्टर ले आए, आप किसी के साथ भी कोई काम करने जाए, तो अगर उस बंदे या बंदी का ज्यादा फोकस खाली ये होगा कि यार ये मुझे पैसे कितने देंगे, तो वो बहुत शॉर्ट साइटेड होता है। तो VAs या टीम मेंबर्स को ये जरूर रखना चाहिए कि मैं इनको क्या वैल्यू दे सकता हूँ, मैं इनसे कितना ऑनेस्ट रह के इनकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सो अगर अब इनसे इन्वेस्टर बात कर रहा है कि जी मैंने अमेजोन अपना अकाउंट खोलना है और होलसेल का काम करना है, और जी मेरे पास 5,000 या 10,000 हैं, और कितनी जल्दी जी ये 20,000 हो सकते हैं या डबल हो सकते हैं, तो आपको उस बंदे की या बंदी की थोड़ी एक्सपेक्टेशन मैनेज करना चाहिए। आपको अपनी नॉलेज और स्किल से उनको थोड़ा ये बताना चाहिए कि जी ये किस तरह काम होता है। जब वो उनको वो चीज़ समझ आएगी तो वो अप्रिशिएट करेंगे कि यार ये बंदा ऐसा नहीं है कि हाँ जी मैंने XYZ कह दिया और मैं इसको 300 या $400 दे दूंगा और ये मेरा काम चला देगा। सो उस VA, गोइंग बैक टू योर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस VA या उस टीम मेंबर को सबसे पहले तो अपनी नॉलेज का उनको बताना चाहिए कि क्या नॉलेज है। अपनी डिस्कशन से उनको अमेजोन की थोड़ी जर्नी समझाना चाहिए। फिर उनसे ये सवाल करना चाहिए कि सर आपका गोल क्या है, आप ये चाह रहे हैं, या मैम आपका गोल क्या है, आप ये चाह रहे हैं कि महीने में मुझे ये $200-300 मिल जाए, तो उसकी अप्रोच डिफरेंट होती है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि जी महीने में मुझे $2,000 या $3,000 मिले, तो उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी। तो जब वो VA एक सिस्टमैटिक अप्रोच के लिहाज से बात करेगा ना,
तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर को ये समझ आएगा कि हाँ यार ये सही बात कर रहा है। सो आई थिंक हमारी यहाँ पर काम पर कहते हैं, एक तो चीज होती है व्हाट, कि मैंने क्या करना है, मुझे पैसे मिल गए, मैंने अकाउंट खोलने हैं, लिस्टें लानी है, एनालाइज करना है और फिर लिस्टिंग करनी है। और एक चीज होती है वाई। अगर वीए कोशिश करे और उस इन्वेस्टर का वाई समझने लगे कि भाई ये क्यों करना चाह रहे हैं, इनकी अच्छी जॉब है, या अच्छी जॉब नहीं है, इनके पास पैसे हैं या नहीं है, ये साइड में करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, तो अगर वो वीए थोड़ा वाई समझेगा ना, तो इन्वेस्टर को भी ये एहसास होगा कि यार ये समझदार लड़का या लड़की है और दे आर रियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई गोल, जिसके लिहाज से ये फिर अपनी ऑफरिंग और सर्विसेज दे सकते हैं। उजलत ना करें। अब जैसे मेरी कुछ लोगों से बात हुई, लिटरली एक ही टेक्स्ट पे उन्होंने मुझसे 3 दफा पूछ लिया, सर आप पैसे कितने देंगे, सर आप पैसे कितने देंगे। अब ऑब्वियसली मैंने मेरे माइंड में तो ये था कि चलो यार अब मैं इनको किस तरह नाइसली इस कॉन्वर्सेशन को एंड करूं और मैं किसी उस दूसरे बंदे से बात करूं जिसका मेन मकसद ये नहीं होगा कि सर आप पैसे कितने देंगे। ठीक है, राइट अवे कुछ भी फौरन ये पूछ लेते हैं आपका बजट क्या है। ओके, दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मे बी द फर्स्ट थिंग शुड नॉट बी आपका बजट क्या है, इट शुड बी व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, आर यू ऑलरेडी डूइंग समथिंग। सो इस तरह के सवाल करें तो मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट रहता है। कम्युनिकेशन में यू नो फिगर आउट अ वे कि जी आपकी जूम की मीटिंग हो जाए, वो बंदा आपको देखेगा या बंदी देखेगी, आप उसको देखेंगे। मैंने कभी नोट किया है वीएज या टीम मेंबर्स जरा घबराते हैं, स्पेशली हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा घबराती हैं कि नहीं जी हम जूम पर नहीं आ सकते एंड ऑल दैट स्टफ, बट दीज आर स्मॉल सटल थिंग्स जो एक ट्रस्ट बढ़ाती हैं एक इन्वेस्टर के लिए। ऑन द फ्लिप साइड देखिए, फॉर एन इन्वेस्टर कोई भी बंदा या बंदी बेसिकली जो नॉलेजेबल होगा, ऑफ कोर्स दैट्स वो तो टेबल स्टेक है ना कि इस बंदे को यार नॉलेज आना चाहिए। और प्लीज अपने आप को 2-3 महीने में एक्सपर्ट ना कहें। मैं फाइजर में 14 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। लेट अलोन के जी 2 महीने का कोर्स किया और 2-3 वीडियोस देख लिए 5-6 घंटे के और एक्सपर्ट हो गए। ओनली ऑफर दो स्किल्स जो आप कर सकते हैं, या अगर आप किसी सीनियर के साथ अटैच हुए हुए हैं, बी ट्रांसपेरेंट कि जी ये हमारी टीम है, ये सीनियर काम करते हैं, मेरा रोल ये है, इस तरह हम आपकी अगर आप हमें अकाउंट देते हैं तो इस तरह चलाएंगे। सो आई थिंक वो ट्रांसपेरेंसी एक इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक सारी बात है, स्किल सेट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर बंदे को ये अंदाजा हो कि यार दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी कैंडिड विद मी। मैंने 1-2 लोगों से बात करी, उन्होंने मुझे कह दिया सर हमारे पास पहले ही 2 अकाउंट हैं, अब ना हम तीसरा नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत थिन स्ट्रेच हो जाएंगे। नाउ बिलीव मी, आई हैव मार्क्ड देम एज इन माय कॉन्टेक्स्ट एज फेवरेट्स कि चलो अभी ये स्ट्रेस्ड है, हो सकता है आगे चल के 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद इनके पास कोई बैंडविड्थ आए। सो एटलीस्ट वो ऑनेस्ट तो थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार बस ये 400 या $500 आ रहे हैं तो ले लो। सो इन्वेस्टर को भी यही देखना चाहिए कि यार जो बंदा आपसे बात कर रहा है उसकी क्या नीड है। इज ही अ कॉलेज स्टूडेंट हु इज ट्राइंग टू मेक some money to pay for his school, or is he a actual service provider? So I think both of those things are very important. थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग इट वेरी वेल। एक इन्वेस्टर का जो है वो माइंडसेट क्या होना चाहिए? लाइक काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास मतलब दे जस्ट वांट टू डू इट, बट उनका अपना भी वाई क्लियर नहीं होता है। सो आप एक इन्वेस्टर के लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि इफ यू आर जंपिंग इनटू दैट बिजनेस, तो आपको भी क्या क्या चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर पता होनी चाहिए कि नॉट एक्सपेक्ट दैट कि जी कल परसों ही आपको इतने प्रॉफिट मार्जिन आने स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट द थिंग्स जो कि उनको भी अपने माइंड में रखनी चाहिए? आई थिंक देखिए, एक तो ना हर कोई जो आपको पैसे देते इज नॉट रियली एन इन्वेस्टर। पैसे तो बहुत से लोगों के पास है। एक इन्वेस्टर का माइंडसेट एक तो ये होना चाहिए कि यार what am I trying to get out of this business and where do I want to take this business। उस इन्वेस्टर को कम से कम साल 2 साल का विजन कुछ ना कुछ तो क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। आई थिंक उस इन्वेस्टर को ये जरूर सोचना चाहिए। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि यार मेरा इसका विजन क्या है। अगर मैं 10 चीजें करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, राइट, मैं चलो इसमें भी पैसे डाल देता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा तो होगा ना कि इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे। हो सकता है पैसे बने, हो सकता है ना बने, हो सकता है मैं ब्रेक इवन करूं, हो सकता है लॉस ही हो जाए, राइट। एक इन्वेस्टर को ये रियलिस्टिक पिक्चर रखनी चाहिए, किसी भी बिजनेसमैन को ये रियलिस्टिक पिक्चर रखनी चाहिए कि यू आर पुटिंग मनी, यू आर फोरकास्टिंग कि जी मैं लिस्ट करूंगा, मीटू करूंगा, अमेजोन नहीं आएगा, मैप वायलेशन अगर हो भी गई तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन रियलिटी ये हो सकती है कि चीजें डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान।
सो एक इन्वेस्टर को आई थिंक रिमशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि लॉस भी हो सकता है, उस बंदे या बंदी को पेशेंस जरूर होना चाहिए। आई रिमेंबर कि जब मैंने शुरू किया था ये नवंबर 2020 में, थोड़ी सी नॉलेज थी मुझे, तो बहुत कम, मेरे ख्याल से 5% होगी, जितनी आप लोग कंपेयर टू आप लोगों को। लेकिन पहले मंथ कुछ नहीं हुआ, दूसरे मंथ कुछ नहीं हुआ, बस वो मुझे अपडेट आती रहती थी कि आज हमने इतने अकाउंट खोल लिए, आज हमने इतनी ईमेल कर दी, और मैं यही थोड़ा सोच रहा था, ओके दैट्स फाइन, लेकिन हम व्हेन विल वी स्टार्ट सेलिंग? बट आई ऑल्सो न्यू कि इट्स बिजनेस, जरूरी नहीं है कि पहले दिन से ही पैसे लगाए तो मैं उनके पीछे पड़ जाऊं यार कि अच्छा यार ये डबल कब होंगे। तो इन्वेस्टर को ये जरूर सोचना चाहिए। पेशेंस का मैंने आपको कहा। दूसरी तीसरी चीज, इन्वेस्टर को एक ये जरूर होना चाहिए कि प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, कि यार खाली मैं ना रोजी पिक्चर ना देखूं कि हर चीज सही होगी और ये मेरे 5 या 10,000 20 हो जाएंगे। व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनारियो? और उस वर्स्ट केस सिनारियो के साथ ना उसका फिर आप बेस्ट केस सिनारियो और वर्स्ट केस सिनारियो, एंड देन यू आर लाइक ओके यू नो व्हाट, आई अंडरस्टैंड बोथ पिक्चर्स, लेट मी फिगर आउट के मिडिल में क्या हो सकता है, एंड देन फिगर आउट द प्लान एंड द स्ट्रेटजी। ये हुआ। दूसरी बात, and I'll speak in the next slide. I think I have the next slide, so let me take a pause on this because a lot of these things I discuss in the next slide, Rimsha. Yeah. Okay, so let me move. So I just wanted to show, जैसे मैंने कहा कि माशाल्लाह आप लोग का प्लेटफॉर्म, आपका इकोसिस्टम ESP का, it's a very good ecosystem. उसमें सक्सेस स्टोरीज भी आती हैं, उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, एंड व्हाट आई वांटेड टू डू कि आपके ऑडियंस को, आई जस्ट वांटेड टू गिव अ पिक्चर कि अगर ये बिजनेस जो भी इन्वेस्टर हो या क्लाइंट हो या टीम हो अच्छी लॉन्ग टर्म प्लानिंग से करे। यानी मैंने हमेशा से यही सोचा था। आई रिमेंबर जब मैं अपने VA से या अपनी टीम मेंबर से, आई लाइक टू कॉल हर, इज जब शुरू में बात करता था तो मैं कहता था कि हम पहले 2-3 महीने में 10,000 तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन मेरे माइंड में यही होता था कि चलो ये तो आई एम काइंड ऑफ गिविंग देम सम सेंस, बट maybe 10,000 for me, 10,000 sales and 10% profit for me is not as big. For me, something to get attention is यार कि ठीक है मेरे मंथ के ना कोई 4-5 हजार प्रॉफिट बन रहा हो, then at this time it's worth my time. वरना तो मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट करके ठीक ठाक पैसे बना लूँ, दूसरी चीज़ें करके ठीक ठाक पैसे बना लूँ। तो मैं उनसे अच्छे खासे गोल्स सेट करता था कि जी हम 6 महीने में ना इसको 30,000 सेल्स पर ले आए, 40,000। वो कहती थी अरे साद ये इतना आसान नहीं होता, इतने इसके यूज़ करना पड़ते हैं। बट आई ऑलवेज यूज टू चैलेंज हर कि लुक यू together and with the right team, with the right approach, right investment, we should be able to do it. हमने तो यहाँ पर जो वैक्सीन, I'll give you an example, 8 साल में बनती है वैक्सीन या दवाएं फार्मास्यूटिकल में, हमने 8 महीने में बनाई है वैक्सीन। सो दिस इज relatively much easier अगर आपके पास right team हो, right capital investments हो, right attitude और mindset हो। सो आई थिंक अब इनफैक्ट कल मैं उनसे बात कर रहा था और हम कह रहे थे यार इस महीने की हमने 35,000 सेल कर ली है और हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि ठीक है यार 60 के कब हिट करेंगे। उनको परेशानी ये हो रही है कि 24 मैं किस तरह करूंगी अगले 5-6 दिन में। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ, एंड व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि ये यस्टरडे का स्क्रीनशॉट है ऑन द लेफ्ट कि अभी ईयर टू डेट हमारी सेल इस वक्त $221,000 हो चुकी है। कल ऑलमोस्ट ये 1,951 हुई थी, रात को ये मैं ले रहा था स्क्रीनशॉट एंड आई सेंट इट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन सी पर मंथ हमारी कैसी ट्रेजेक्टरी चल रही है और चलती रहेगी। ऑल्सो मैंने इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि शुरू में उनका कोई, जो मेरी टीम मेंबर थी, कोई पैसे वैसे पे था कि ठीक है जी मिल जाए, जाहिर बात है वो अपना टाइम लगाएंगी कि उनको पैसे मिले, लेकिन इतना ज्यादा फोकस नहीं था। इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद $300 और अब मुझे वो बताती हैं, जो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता है, कि वो अपने सीनियर को 90% दे करती थी पहले 2-3 महीने, एंड देन ऑब्वियसली द इक्वेशन शिफ्टेड, फिर वो खुद पूरा अकाउंट देखने लगी। बट आई वांटेड टू गिव यू अ स्नैपशॉट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स जो मैंने उनको पेमेंट की है, एंड द वे आई वर्क विद माय टीम मेंबर्स, जनरली देयर इज अ सैलरी कंपोनेंट and then there is a commission based on sales and margin. जितनी ज़्यादा सेल्स करेंगे अच्छे मार्जिन पे करेंगे, I'll pay more commission on it. So I think last 2-3 महीने में she's been averaging $700. That's a screenshot आप देखिए, 693, और ये 2 मंथ की
ये 2 मंथ की पे है. आई डोंट वांट पीपल टू थिंक अरे एक महीने में $2,000 चले गए. I think there was some issue with one of the payments, so I combined. But she's now averaging $1,000 per month compensation, and I can tell you, okay, I'm very confident myself, and she also knows that by next year, ये आराम से 2,000 पहुंचा हुआ होगा, and that's from one account, and now she is managing with the team 3 of my accounts. सारे account इतने बड़े नहीं हैं, कुछ तो काफी छोटे हैं, they are new, लेकिन हमारी aspirations यही हैं. So आपकी जो listeners हैं, I just want to show them an actual picture. ये कोई doctored screenshot नहीं है, ये मेरे अपने हैं जो मैंने भेजे हैं कि there is a lot of possibility अगर मेहनत और लगन से काम करें और आपको अच्छे partners मिल जाएं. You know, when I say partners, यानी अच्छा investor या client मिल जाए और obviously उस investor और client को अच्छी team मिल जाए. And that sometimes is a matter of luck, sometimes it's a matter of hard work and continue to find कि आप अच्छे लोग ढूंढते रहें. ठीक है. अब आपके काफी जो सवाल थे, स्लाइड थी की कंसंट्रेशन पॉइंट्स. यस. सो आई वांट यू कि आप हमें इसके बारे में बताएं कि एज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड देन इन्वेस्टर एंड क्लाइंट्स के जो भी की पॉइंट्स हैं वो क्या माइंड में होने चाहिए एंड ऑल. Sure, and I think this is what we call the money slide. This is a very important slide क्योंकि I think इसमें वो सारी चीजें हैं जो मैंने अपने not only Amazon, outside Amazon experiences सीखी हैं, और एक एक पॉइंट पे I can speak about an hour, but I'll try to summarize these. देखिए, ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, इट गोज विदाउट सेइंग. हमारे रिलीजन में भी यही चीज़ है, और कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर आप ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से करेंगे ना, यानी आप उस बंदे या बंदी जो इन्वेस्टर या क्लाइंट आया आपके पास, उसको आप सही अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं, सही स्किल सेट बता रहे हैं, इट विल गो अ लॉन्ग वे. डोंट थिंक ऑफ इट एज अ यार चलो $300 आए हैं, ले लो, फिर देखा जाएगा, दूसरों से काम करा लेंगे, आउटसोर्स कर देंगे. आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक सर्विस प्रोवाइडर की लॉन्जेविटी ना इस पे बहुत रिलाई करती है, और एक दफा ये आपकी अच्छी सेट हो गई, जिससे ट्रस्ट बन गया, इट विल कंटिन्यू टू प्ले और पे डिविडेंड्स. ठीक है. दूसरा, आउटकम्स एंड एक्टिविटी. मैं बहुत देखता हूं और खुद भी मैं सोच रहा होता हूं कि हम आउटकम्स पे कम और एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करते हैं. यार 100 ईमेलें कर दो, 200 ईमेलें कर दो, फिर 2 अकाउंट खुल जाएंगे, इतने स्कैन कर लो, ये कर लो, दैट्स ग्रेट. लेकिन एज एन इन्वेस्टर, एज अ क्लाइंट, एट द एंड ऑफ द डे आप 100 ईमेलें करें चाहे 2 ईमेलें करें, आई एम कंसर्न्ड विद वट एवर टारगेट आई हैव सेट, कि यार चाहे सेल्स इतनी हो, चाहे एसकेयूज इतनी हो. सो आप जो भी अप्रोच यूज करें ना, कीप दैट एंड गोल इन माइंड कि यार मैं वीकली अगर मैं इतनी ईमेलें कर रहा हूं और मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है और मैंने 10 एसकेयूज ढूंढने हैं, तो हाउ शुड आई चेंज इट? बी क्रिएटिव. सो फोकस ऑन आउटकम वर्सेस एक्टिविटी. प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग. देखें, कोई जब मसला हो जाए या मसला होने वाला हो, उसको छुपाए नहीं. आप प्रोएक्टिवली अपने पार्टनर या इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करें उसको, कि आप दो, हो सकता है अच्छा क्रिएटिव कोई सोल्यूशन लेकर आ जाए. इसी तरह जी, अगर रिपोर्टिंग करनी है तो डोंट वेट कि जी आपसे वो इन्वेस्टर या क्लाइंट पूछे कि यार अच्छा क्या हुआ पूरे हफ्ते में या क्या हुआ पूरे महीने में. आप कोई अपना केडेंस बना लीजिए, चाहे वो डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे वो स्टेटस रिपोर्ट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, जो दोनों के लिए सही काम करे. बट बी प्रोएक्टिव. रिस्क इशू बनने से बचाया जा सकता है अगर उसको प्रोएक्टिवली आप एड्रेस कर लें, लेकिन अगर रिस्क को आप एड्रेस नहीं करेंगे, वो एक दिन जाके ना इशू बन जाएगा, और उस इशू बनने में फिर आप, जाहिर बात है, चैलेंजेस होते हैं. सिमिलरली, आप जब डिस्कशन करें, इनिशियल एंगेजमेंट करें अपने किसी भी क्लाइंट या इन्वेस्टर के साथ, डोंट मेक इट सैलरी और एक्विटी फोकस्ड. आई मीन, बात करें. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. हम लोग के यहाँ पे जब इंटरव्यूज होते हैं अपनी जॉब्स वगैरह के लिए, को तकरीबन 5-6, मेरी अभी मैं जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहा था, 14 इंटरव्यू हुए थे. आई डिड नॉट गेट द जॉब, बट 14 इंटरव्यू हुए थे, और लास्ट इंटरव्यू में सैलरी डिस्कस हुई थी कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आप क्या मांग रहे हैं. जस्ट इमेजिन, 1 महीने तक के इंटरव्यूज हुए थे. ऑफ कोर्स इट्स डिफरेंट, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट इंडस्ट्री एंड स्टफ. लेकिन आपकी जो एंगेजमेंट हो या व्हाट्सएप या मैसेंजर पे भी ना, पहले 1-2 उसमें फौरन आप ना ये एक्विटी इतनी दे दें या सैलरी की बात ना करें. यू शुड मोर बी फोकस्ड ऑन, इज दिस द राइट इंडिविजुअल फॉर मी, इज दिस द राइट टीम फॉर मी. मैं इस बंदे या बंदी के साथ, ये जो इन्वेस्टर हैं या क्लाइंट हैं, मैं खाली और भी क्या सीख सकता हूँ, इनका कितना एक्सपीरियंस है. ये खाली एक अमेजॉन तो इट्स माई फर्स्ट, कहते हैं ना जैसे, फुट इन द डोर. उसके बाद हो सकता है कितनी चीजें खुल जाएं, इनके साथ मैं दूसरे काम करूं, इनसे मैं मेंटरशिप ले सकता हूं. सो ये इंसान को जरूर सोचना चाहिए. अपनी रिलेशनशिप को ना ट्रांजैक्शनल ना बनाएं, उसको थोड़ा स्ट्रेटेजिक रखें. अब क्या मतलब है इसका?
ट्रांजैक्शन ये होता है जी मैंने आपको ये 10 रुपए दिए, आपने उसकी मुझे चीज दे दी, ना कोई रिलेशनशिप है ना कुछ, आप भी मुझे उतने की दे रहे हैं, अगर आपसे नहीं मिली मैं कल दूसरे के पास चला जाऊंगा। ये तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। स्ट्रेटेजिक क्या होता है कि ठीक है यार, मैं XYZ के साथ काम करता था, ये मुझे ESP पे मिले थे, लेकिन व्हाट, आज इनके पास ये चीज नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है, बट आई विल वेट, क्योंकि ये नॉट ओनली खाली मुझे एक ट्रांजैक्शन के लिए काम आते हैं, ये मुझे और वैल्यू भी देते हैं। इनका वैल्यू ऐड जो है, जो भी वो वैल्यू ऐड हो, आपकी स्किल सेट हो, आपका मेहनत हो, आपकी ऑनेस्टी हो, आपका नेटवर्क हो, मैं कहूँगा यार मुझे इसी बंदे या बंदी के साथ काम करना है। ठीक है। अनदर सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, काम आया काम कर दिया, प्रोजेक्ट आया प्रोजेक्ट कर दिया, अपवर्क से आया, फाइवर से आया, कहीं से भी आया, बस वो खत्म हो गया। ठीक है, आपको कोई गर्ज नहीं होता कि जी कैसा हुआ, आपने 1 महीने का प्रोजेक्ट किया, वो खत्म हो गया। ऑफ कोर्स अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या होना है, यू डोंट रियली केयर। एक एनेबलर्स होते हैं, एंड नॉट द प्लेटफॉर्म एनेबलर, जस्ट द कॉन्सेप्ट एनेबलर, कि जी मुझे काम मिला है, मैं साथ के साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन ये काम मैं और अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, ये मैं और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अगर ब्रांड को अप्रोच करना है, इनकी ईमेल इन्होंने टेम्पलेट मुझे ये दी थी, मैं इसको थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ। नाउ यू आर मूविंग अप द लैडर ऑफ ट्रस्ट एंड वैल्यू ऐड, आप किस तरह कर रहे हैं, और आपकी जो वैल्यू एज अ सर्विस प्रोवाइडर एक इन्वेस्टर या क्लाइंट को बढ़ती चली जा रही है। यानी वो कहेगा यार मुझे तो इन्हीं के साथ काम करना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर आप ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाए, यानी अगर मैं कोई चीज कर भी रहा हूं और आप कहें नहीं साद यार व्हाट, ये सही नहीं लग रही, आप ये ना करें, ठीक है, आप कह रहे हैं इतना हम पैसा लगा देते हैं, आप ये ना लगाएं, ठीक है, आप कह रहे हैं हम इस 3PL को यूज कर लेते हैं, बट वी शुडंट डू इट, मे बी वी शुड वेट। तो वो जो ट्रस्टेड एडवाइजर इंसान बन जाता है ना, बिलीव मी, दैट्स द बेस्ट रिलेशनशिप और पार्टनरशिप, चाहे आपके स्पाउस के साथ हो, फैमिली के साथ हो, चाहे काम के साथ हो, चाहे किसी इन्वेस्टर के साथ हो। तो आप लोग की जो एस्पिरेशंस होनी चाहिए, और ये फॉरन नहीं होती, ये टाइम के साथ होती हैं, अपने आप को क्रेडिबिलिटी अर्न करना पड़ती है, लेकिन ऑल ऑफ अस शुड एस्पायर टू बी ट्रस्टेड एडवाइजर इन एनी एंगेजमेंट। उसमें क्या होता है, फिर जो मेरे इश्यूज होंगे एज एन इन्वेस्टर, आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे होंगे, आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि यार मैं बस ये काम करूं, पैसे लूं और फारिग हो जाऊं। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन यू शुड बी एज अ ट्रस्टेड एडवाइजर दैट विल कंटिन्यू टू पे अ लॉट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, फिलहाल हम लोग बहुत से सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो जनरलिस्ट बने हुए होते हैं। हाँ जी, हम फेसबुक ऐड भी कर की स्किल है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग की भी है, एडसी की भी है, होलसेल की भी है, PL की भी है, ड्रॉप शिपिंग की भी है। इट्स फाइन, यू आर यंग इन योर करियर, आप हर चीज ट्राई करें, आप सीखें, लेकिन आफ्टर अ वाइल यू शुड डेवलप अ नीश। आप इतने एक्सपर्ट बन जाएं कि यार होलसेल का नाम आए ना तो बस वो यही कहे कि नहीं जी मैंने तो जी हातिम के साथ काम करना है, या मोइस के साथ काम करना है, या मुजैफर सर के किसी स्टूडेंट के साथ काम करना है, या रिमशा के साथ काम करना है। सो मेक अ नेम ऑफ अ नीश। अब क्रिकेट प्लेयर्स जो अच्छे होते हैं वो हॉकी और स्क्वॉश और वो भी तो नहीं खेल रहे होते हैं ना, बट दे फोकस ऑन क्रिकेट। सो And it's very 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 much important because यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो एज अ VA मतलब काम कर रहे होते हैं, दे कैन थिंक कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, और नीड स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग अस दैट पॉइंट। यस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो फिर क्या करेगा, योर वर्क विल स्पीक टू योरसेल्फ। आप लोग गूगल करिएगा, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू बिकम एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग, कोई भी, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो ऑटोनमस कार ड्राइविंग स्किल सेट्स हो, चाहे वो जीन एडिटिंग हो, जीनोमिक्स हो, कुछ भी हो, ब्लॉकचेन हो, राइट? आप गूगल करिएगा, उसमें लिखा हुआ होगा फॉर एनीबॉडी टू बिकम एन एक्सपर्ट it takes 10,000 hours of learning and experience to become an expert. 10,000 hours जरा आप हिसाब करिएगा, साल होते हैं काफी। चलें, ये डिफरेंट चीज है, राइट? और माशाल्लाह कुछ लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं, उनको इतना टाइम ना लगे, यार 10 भी ना लगे तो 1000 आवर्स तो लगे ना इंसान को। सो फोकस ऑन समथिंग, उसके आप ना उसकी किताबें पढ़ें, इतनी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के पास, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, ESP की फ्री सारी अब ट्रेनिंग जो भी अच्छी खासी हो गई है, मेंटर्स हैं, कि यार मैं आपको सवाल करूँ ना और मैं कहूँ यार अगर ये XYZ ने कहा है तो बस यही करना होगा, बिकॉज इनके पास इतना एक्सपीरियंस है। फिर जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ना, मनी विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, क्लाइंट्स विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, यार काम कराना है तो इन्हीं से कराना है। एंड माशाल्लाह आप लोग के इकोसिस्टम में है, मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ, मैं खुद कोशिश कर रहा होता हूँ कि यार चलो मेरा अकाउंट
ये देख लें तो मुझे ये सुकून रहेगा कि ये इस चीज में एक्सपर्ट हैं और इन्हें आता है. सो दीज आर सम पॉइंट्स जो एक सर्विस प्रोवाइडर को माइंड में रखना चाहिए. एज एन इन्वेस्टर, या आप बात करें या हो सकता है कोई इन्वेस्टर ये अगर सेशन देखे, उनको भी अपनी ना क्लैरिटी ऑफ गोल्स होनी चाहिए कि यार ये आर दे ट्राइंग टू मेक स्मॉल इनकम, आर दे ट्राइंग टू मेक इट एक्चुअल बिजनेस, डू दे हैव द रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट. यही ना बस सोच लें जी 5 को 10 करने, 10 को 15 करने, वो हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है लंबे टाइम में हो. Treat it as a business rather than side hustle. Wholesale is one of the oldest business model in our history. All we are doing, we are trying to do it online, and we're trying to do it in e-commerce. So इसमें वही marketing skills, इसमें वही product selection skills, इसमें वही product pricing skill, inventory management skill, cash flow skills, ये सारा business है. यानी लोग तो पूरे पूरे MBA करते हैं इन चक्रों में. तो ये ना सोचेंगे 2-3 महीने में as an investor ये मुझे चीज समझ आ जाएगी and then this will be great. I mean, treat it as a business if you want to. रिस्क मैनेजमेंट की मैंने बात करी, प्लान अहेड. अब फोर्थ क्वार्टर आ रहा है, सबको पता है कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेल हो जाती है. सो प्लान फॉर दैट कि आपको कितना पैसे चाहिए होंगे. बहुत से लोगों की इन्वेंट्री लिमिट होती है 3,000, 2,000, 2,500. क्या 3PL यूज करूंगा, क्या FBM करूंगा. पहले से प्लान करें कि ये ना हो नवंबर में बैठे में अरे यार इतनी इन्वेंट्री है लेकिन अमेजोन तो ले ही नहीं रहा. राइट, सो दैट शुड बी योर प्लानिंग. बी रिस्पेक्टफुल एंड ट्रस्ट योर टीम मेंबर्स. आपको टीम मेंबर्स को ट्रस्ट करना होगा. यू कैन वेरीफाई, यू शुड ट्रस्ट, यू शुड वेरीफाई. ये नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें, लेकिन माइक्रो मैनेजर भी ना बने रहें. अगर टीम अच्छा कर रही है उनकी थोड़े से पैसे देखिए, यू डोंट ओन देम, राइट, गिव देम रिस्पेक्ट. ये ना करें हर वक्त उनको व्हाट्सएप करे हुए, कोई उनको सुबह रात की कोई आपको ख्याल ही नहीं है कि बस यार मैंने पैसे दे दिए सो दिस गाय इज अवेलेबल फॉर मी और गर्ल इज अवेलेबल फॉर मी 24/7. उनकी भी फैमिलीज होती हैं, वीकेंड्स होते हैं, उनको भी एक दिन मिलता है. गिव देम दैट स्पेस. और वो अच्छा काम करें तो एक्नॉलेज करें उनको, चाहे ग्रुप्स में एक्नॉलेज करें, चाहे अपनी टीम्स के साथ करें, उन्हें रिवॉर्ड करें. उनको इंसान मोटिवेटेड रहता है. एंड लास्ट थिंग दैट रिमशा आई आल्सो मेंशन, राइट, बी पेशेंट. प्रॉफिट एंड लॉस इज पार्ट ऑफ द बिजनेस, एंड इस लॉस को कीप इन माइंड के खाली यही ना कि बेस्ट केस सिनेरियो. there's always should be care, what if things don't work out, what if I do have a little bit of a loss, मैं किस तरह manage करूंगा. So these are some points, and I think more importantly last में, and माशाल्लाह आप लोग के ग्रुप में और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ग्रुप में भी मैं फॉलो करता हूँ, उनके फेसबुक ग्रुप्स वगैरह. पे फॉरवर्ड जो आपने सीखा है, look there is abundance, हर किसी के नसीब में लिखा हुआ है जितना रिस्क और वो तो मिलना ही है. तो दूसरे को बताने से वो कभी कम नहीं होगा. इनफैक्ट ये जो पॉजिटिव एनर्जी होगी ना वो और ग्रो करेगी. सो ऑलवेज पे फॉरवर्ड, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे आपके दूसरे टीम मेंबर्स हों, जूनियर्स हों, थोड़ा सा टाइम निकाल के ऑलवेज पे फॉरवर्ड. कोलैबोरेट करिए. कोलैबोरेशन से डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस आती है, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज आते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है इन जनरल, नॉट ऑलवेज, इन जनरल थोड़ा बेहतर होता है. बट कोलैबोरेशन में फंस ना जाए कि एनालिसिस पैरालिसिस, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है. यू हैव टू मेक डिसीजंस. लेकिन शुरू में जरूर दूसरों से डाइवर्स ओपिनियंस लीजिए. दूसरे बैकग्राउंड्स होते हैं, दूसरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छी चीज बनती है उससे. एंड बी ग्रेटफुल टू obviously your family, be grateful to Allah, but also be grateful उन लोगों को जो ये प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं. आप लोग का ESP प्लेटफॉर्म माशाल्लाह काफी अच्छा है. आई हैव लर्नड अ लॉट. चाहे वीडियोस देखी हो, चाहे Q&A सेशंस देखे हो, चाहे लोगों की पोस्ट देखी हो, थोड़ा बहुत तो समझ आने ही लगता है ना. सो बी थैंकफुल to your mentors, to your teachers, to people who have given time to create this ecosystem. Even ये जो इंटरव्यू भी हो रहा है, रिमशा, आप, मोइज, हातिम, ये जो कोऑर्डिनेट किया आपने, टाइम लोग निकाला, कुछ ना कुछ तो शायद फायदा मिल ही जाए कोई जो सुन रहा होगा. So always be grateful to people who are doing it. And I think that's all what I have, Rimsha. I'm happy to take any other questions और कोई सवाल, कोई जवाब. And again, I'll emphasize, वो investor or client, you are only as good as your team and perhaps the technology you're using in this business. देखिए इस बिजनेस में कोई कंपेरेटिव एडवांटेज बहुत कम होती है. ठीक है, ब्रांड्स एक्सक्लूसिविटी मिल गई, इतनी आपने ऑटोमेशन कर ली, लेकिन कोई बैरियर्स टू एंट्री तो है ही नहीं. बस थोड़ा सा पैसा डाला और अकाउंट बनाया और लिस्टिंग कर दी मी टू करके. तो हजारों लाखों लोग ये कर रहे हैं. सो आपकी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है ना, ये सबको अपने माइंड में रखना चाहिए, इज योर टीम एंड टेक्नोलॉजी. तो अपनी टीम का रिस्पेक्ट करें, उनकी ग्रोथ में जेन्युइन इंटरेस्ट लें. वो ग्रो करेंगे तो आप खुद भी ग्रो करेंगे.
So I think I want to end up with that me personally, I always feel I'm only as good as my team, and you should always take care of your team. And this is especially important for our investors and clients. Exactly. And thank you so very much, sir, for giving us so valuable time. And आपने बहुत अच्छे से explain किया आज चीज़ें कि एक बीए को क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए और एक इन्वेस्टर को क्या रखनी चाहिए। आई एम वेरी मच होपफुल कि इस सेशन से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो क्लैरिटी मिली होगी कि एक इन्वेस्टर माइंडसेट से अगर आप इस बिजनेस में जंप इन हो रहे हैं तो आपके ये प्रोज एंड कॉन्स आपके माइंड में होने चाहिए और एक बीए को एक लॉन्ग टर्म जर्नी अपना किस तरीके से प्लान करना चाहिए। सो इंशाल्लाह वी विल इनवाइट यू अगेन जब भी हमें मौका मिला बिकॉज आपकी इतनी जबरदस्त बातें और पॉइंट्स आई रियली वांट टू लिसन दैट मोर। मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिला है इससे एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी इससे बहुत फायदा होगा। Well, thank you so much for having me, and thank you for ESP platform for arranging this. Or I, like I said, I'm fortunate enough to have really good friends who are doing well in life and in their careers. So कोई और भी topic हो, whether it's artificial intelligence. A really good friend of mine is a very senior person in Amazon. He's the personalization manager for Alexa, or director, I should say. He can speak about different things. And with technology, with data, AI will become increasingly important in these e-commerce business. Another friend of mine is a head of e-commerce for a global company. So in future, I'm happy to bring them on different panels कि जिससे हमारे audience और हमारी पाकिस्तानी community और दूसरे students वगैरह को जो भी फायदा मिल सके, तो I'm happy to help. Thank you so much, sir, for adding value in our community. Really thankful. All right. Well, thank you, and you all have a very good rest of the day. And thanks for having me. And Assalamu alaikum. Okay, sir. Take care.